This call is now being recorded. Is it visible? Yes, sir. Okay. So now start with the gradient descent or gradient descendant algorithms, which is very important and useful algorithm for machine learning, deep learning, neural network, and optimization problems. So it is very important. कहीं पे भी हम किसी भी चीज को कन्वर्ज करते हैं, स्टॉप करते हैं, कोई भी क्राइटेरिया को फॉलो अप करते हैं, सो ये एल्गोरिदम्स की हमारे पास रिक्वायरमेंट है, नीड है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम फॉर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. All these things are dependent on optimization kind of problems. मीन्स कि हमारे पास कुछ भी होगा उसको हमें मिनिमम से मिनिमम वैल्यू पे लेके आना है. सो ऑप्टिमाइज करना है. 10 सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें से बेटर कौन सा है वो फाइंड आउट करना. दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन. So gradient descent says, yeah, simply it is an optimization problem for finding the local minimum of the differential functions, and gradient descent is simply used to find the values of functions parameter, the minimize the cost function as far as possible. Means in neural network or machine learning term, if we find that error, means we have a problem like that. So if I assume that it is so if I assume that this is a normal line, equation of the line, and we fit that data into the line. So we fit that data into the line means important term. We know that in coordinate system it is y equals to mx plus c. Know that it is the equation of line, and we have to fit that data points, these points into that line. So this is fitting y hat. Assume that it is optimized, fit that value into here, and so fit that value also that. Okay, so all that values are fitted. So this is called as estimated value. And gradient descendant problems in any kind, it is calculated that difference value. This is the y value, and after y hat we have estimated value. This is, and this is calculated. And this value means a y, it is given, either this is y hat minus y and its mod value, or we have to say that y hat minus y square. Argument min, we can say that max of arg min values. So ये सारे मैथमेटिकल टर्म है. So अगर हम इसको सिंपली वे में डिस्क्राइब करना चाहें, so हमारे पास एक डेटा पॉइंट हो गए, कुछ डेटा पॉइंट होंगे जिसमें से हमें इनको कैलकुलेट करना है. तो हम इस सारी चीजों पे फोकस नहीं करते हैं. So this is the one solution, and we have to calculate the difference between this solution which is calculated by the user, and this is the difference.
So every point is different. That is called as E. That is error. So E is a difference between this point or that point. So this is the target which is given, and this is calculated point, and this error F, and after that we have to square that error, and this is E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. So some of the positive values, some of the negative value, but we find only the positive value. So we have to take a square of that and sum that value, that is E square, up to start one position to n, and either we have total number of samples, this is the one scenario, or second scenario it is 1 by 2. Okay, so we have to calculate the total number of this. So this is constant value. So this is important. We have to find E value, that is error functions, and sometimes it is called as cost function. So here we have using, I think it is not given here. So this one, that is cost function. And gradient descendant says, using that algorithm, we have to minimize that cost functions. So that important, we have to minimize these errors. So it is one solution. Assume that in same problem, one solution is there. In that case, that minimization is reduced, and another line is generating. So another solution is generated. So more than 100, 200, 300 solutions are possible, and gradient descendant pick only one or two solutions that minimize that cost functions. So here it is the cost function, and this is gradient descendant to minimize that cost function. So gradient descendant says we have to minimize that cost functions in term of, that is called as error functions. So or we can say that minimize of error functions, that sum of target minus actual square. And we know that target is given, target minus actual in term of machine learning, anyone, it is omega ij, if it is I, omega ij to the power t x of j, or I think we have not using subscript, just matrix notation, that is target omega transpose of x plus b, that is actual, and we have to square it. So this is the exact error functions we have to or cost functions, and we want to gradient, using that gradient descendant, we want to minimize that cost functions. So cost functions important है. Cost function generally called as error function. एरर क्या होगा, जो हमारे पास सॉल्यूशंस निकल के आएंगे और जो डेटा पॉइंट्स में टारगेट वैल्यूज गिवन होंगी, उनके अकॉर्डिंग जो हम हर सॉल्यूशंस में और हर टारगेट वैल्यूज में एरर फाइंड आउट करेंगे और उस एरर को हम मिनिमाइज करेंगे, बस। और किस एल्गोरिथम का यूज करेंगे, ग्रेडियंट डिसेंडेंट का। तो अभी बस आप इतना समझिए कि ये हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट फंक्शंस का। समझ में आया कॉस्ट फंक्शन कैसे निकाल रहे हैं, एरर को हम मिनिमाइज कर रहे हैं। एरर क्या हो रहा है, टारगेट माइनस एक्चुअल हो रहा है। टारगेट गिवन होता है, एक्चुअल ए का फार्मूला हमें पता है, इट इज ओमेगा ट्रांसपोज ऑफ एक्स प्लस बी। बी इज अ बायस, ओमेगा इज अ, और डब्ल्यू इज अ parameters, that is called as weight. So here it is again important line, a gradient descendant simply used to find the values of functions parameter. So this is input and this is target output, and this W and B, it is a parameter or coefficient, and gradient descendant to converge or minimize or optimize that W and B values.
ग्रेडियंट डिसेंडेंट का केवल काम इतना है कि ये W और B को हमें करेक्ट या कह सकते हैं मिनिमम और बेटर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इसका। So before complete start with gradient descendant, so something it is gradient, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कैलकुलस में। तो ग्रेडियंट होता क्या है? कैलकुलस में ग्रेडियंट होता क्या है? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? It is a partial derivatives. ग्रेडियंट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव्स। और ग्रेडियंट डिसेंडेंट मतलब, डिसेंड मतलब आपका गिरता हुआ, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में गिरता हुआ। सो पार्शियल डेरिवेटिव्स किस फॉर्म में होगा? रिड्यूसिंग फॉर्म में होगा। सो इसीलिए यहां यूज किया जा रहा है दैट इज मिनिमम। सो मैक्सिमम वैल्यू कुछ होगी, उसको रिड्यूस करते हुए, या कोई भी वैल्यू होगी उसमें से हम कुछ कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को रिड्यूस करके हम रिजिड फिक्स कर देंगे, वो कहलाएगा आपका ग्रेडियंट डिसेंडेंट। सो ग्रेडियंट इट इज इंपॉर्टेंट टर्म, इट मेजर हाउ आउटपुट ऑफ ए फंक्शन चेंजेस इफ चेंज द इनपुट लिटिल बिट। सो इट इज अ कॉस्ट फंक्शन। अगर हम j की वैल्यू, j कॉस्ट फंक्शन ले लें जिसमें क्या होगा? w होगा और क्या होगा? बायस होगा। सो ये होता क्या है इस फॉर्म में? क्या होगा? दैट इज टारगेट वैल्यू जो भी हमारे पास गिवन होगा, या y हैट कुछ भी है, सम लिटरेचर्स में अलग अलग है। सो माइनस w ट्रांसपोज ऑफ x माइनस b, और हमने इसको क्या किया? स्क्वायर किया, और क्या किया हमने? इसे सम कर दिया। सो j को हमें क्या करना है? मिनिमम करना है। सो j इज अ कॉस्ट फंक्शंस। एज्यूम दैट j एक जनरल नोटेशन है जो हम लोग हर लिटरेचर में यूज करते हैं। तो ग्रेडियंट इसको मिनिमाइज कैसे करना है? यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंडेंट। और ग्रेडियंट का मतलब होता है कैलकुलस में डेरिवेटिव्स, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। इनपुट गिवन होता है, हम इसके रिस्पेक्ट में कभी पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं करेंगे। जो हमारे पास चाहिए होता है हम उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स करते हैं। हमें क्या चाहिए? वेट मैट्रिक्स चाहिए और बायस चाहिए, तो हम केवल और केवल पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ वेट एंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ बायस। बट बायस भी फिक्स हो जाता है कुछ टर्म पे, तो हम अभी फोकस कर रहे हैं केवल वेट पे। तो दैट कॉस्ट फंक्शंस, और वी कैन से दैट एरर फंक्शंस, ओके। ग्रेडियंट क्या कर रहा है कि आउटपुट फंक्शंस इज चेंजेस हाउ मच, ये आपका हाउ मच इज चेंजेस व्हेन इफ इनपुट्स इज लिटिल बिट, इफ दैट चेंजेस that output is also changes, or vice versa, that change it is also change. So gradient says we have to partially derivative with respect of omega। अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव और मिनिमम वैल्यू क्या होती है हमने एज्यूम किया, नेगेटिव कभी नहीं जाएंगे, जीरो कंसीडर करेंगे, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरे टर्म को विद द रिस्पेक्ट ऑफ ओमेगा, एंड दैट वैल्यू इज जीरो। तो इससे हम डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हुए डेरिवेशंस को यूज करेंगे और इसको हम एक इक्वेशन में डेरिवेट करेंगे। सो बिफोर दैट, फर्स्ट थिंग, ग्रेडियंट इज function means output functions that changes if input is changed little bit, because of derivations are partially derivatives are used. So it is important, I have written all that theoretically. So it is simply measure the change in all weights with regard of change in error. So if change in that error or cost function is changed, okay, so it is mathematically notation. We have some example before that, for I have speak that you have also think that gradient is a slope of a function, and higher gradient is steeper the slope and the faster the model can learn, but if slope is zero then model stop is learning. So इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? सिंपली अगर स्लोप की बात करें, एक इसमें स्लोप क्या होगा?
ये एक लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा? जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज थीटा थीटा, एंड टेन थीटा। टेन थीटा। ओके, अगर ये थीटा की वैल्यू इस लाइन पे अगर आप फोकस करें, हाइयर द ग्रेडियंट, थीटा हाइयर कब होता है? ऑप्टिक्स एंगल के लिए ऑब्ट्यूज एंगल कितना होगा? सर एंटी I think क्लॉकवाइज अगर हम में। assume को बोले इट इज 90 डिग्री, आई थिंक दैट, तो स्लोप अगर इसको भी छोड़ दीजिए, चलिए मानते हैं अगर आपका हाइयर होगा ग्रेडियंट, देन जो स्टेप साइज होगा, जो स्लोपर साइज होगा, वो फास्टर होगा। मतलब कि एक बॉल यहां से आप मूव कराएं और जितना ये मूव करते चले जाएंगे उतना ये डीके फास्टर होता चला जाएगा। ओके, मान लीजिए इसको मूव कराएंगे, देन ये पोर्शंस ऊपर जाएगा, देन और फास्टर होगा। जितना ये एंगल्स जनरेट करेगा उतना ये आपका फास्टर ग्रेडियंट जनरेट करेगा। मतलब डेरिवेशन से डेरिवेटिव फास्टर होंगे, फास्टर आउटपुट यूज करे जनरेट करेगा। और अगर ये फास्टर मॉडल जनरेट होगा और इसको हम पैरेलली बोले, इस तरीके से मूव करें, इस तरह बॉल है, थोड़ी पोजीशन पे टिल्टेड पोजीशन पे रखेंगे तो इतना मूवमेंट उसका फास्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इसको हम अभी आगे यूज करेंगे, कैसे करते हैं। अभी बस आप इतना समझो कि अगर आपका हायर ग्रेडियंट होगा, देन आपका जो मॉडल होगा वो फास्ट लर्न करेगा, अदरवाइज ये आपका नॉर्मल लर्न करेगा। तो ग्रेडियंट अभी बस इतने की सोचो, ग्रेडियंट डिसेंडेंट क्या है? ग्रेडियंट डिसेंडेंट एक एल्गोरिदम है जो हमारे एरर फंक्शन को रिड्यूस या मिनिमाइज करता है। ठीक है, अब एक मैथमेटिक एक एग्जांपल आप सोचिए कि ये कंप्लीट थ्योरेटिकली है, लिख दिया है, इट इज अ कॉस्ट फंक्शन जे बी एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ इट इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन। ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, ये कंप्लीट है। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक आप ये सोचो कि आप एक स्टेयर्स पे गए हो, ठीक है, आप किसी पोजीशन पे हो, आप हायर पोजीशन पे हो और आप अपने लोएस्ट पोजीशन पे आना चाहते हो, तो आप कैसे कहोगे? मान लीजिए आप एक 50 स्टेप्स का एक लैडर है हमारे पास और आप उसका यूज करके अपने लोएस्ट पोजीशन पे आना चाहते हो, तो कैसे होगा? या तो आप एक एक स्टेप यूज करोगे, अगर स्टेप्स छोटे हैं तो आप 2 यूज कर सकते हो, 3 यूज कर सकते हो। और बहुत आजकल देखा होगा चलते हुए स्टेप्स पे लोग 2-3 दौड़ते हुए, भागते हुए कह सकते हैं, 2-2 स्टेप 3-3 स्टेप का जंप करते हुए मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंडेंट यही काम कर रहा है, दैट इज स्टेपेस्ट डिसेंडेंट, कि हमारे पास कोई पोजीशंस है यहाँ पर और हम इस लोएस्ट पोजीशन पे कहीं पे भी आना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो कुछ कुछ स्टेप्स में हम मूव करेंगे इस तरीके से, या फिर और छोटे स्टेप्स इस तरीके से मूव कर दें, या कुछ स्टेप बड़े होंगे बाकी सब छोटे होंगे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, बट मेन मोटिव क्या है कि हमें अपने इस हायर पोजीशन से अपनी इस लोअर पोजीशन पे मूव करना है। दैट इज अ ग्लोबल मिनिमा। मींस हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कॉन्वेक्स सॉल्यूशन है, कॉन्वेक्स प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर रहे हैं, हम चाहते हैं उसका लोकल मिनिमा फाइंड आउट करें। बट लोकल मिनिमा आपका कई हो सकते हैं। हर मान लीजिए हमारे पास इस तरह की एल्गोरिदम है या इस तरह का एक कर्व जनरेट होता है। अब आपने यहां पर आप रन कर रहे हो और आपने रन करते हुए स्टेपेस्ट ग्रेडियंट एल्गोरिदम को यूज किया, आप ऐसे मूव करते चले जाओगे, एक तो ये इसका मिनिमा हो जाएगा, देन कुछ एल्गोरिदम रन करते हुए एक यहाँ पे आओगे, ये इसका मिनिमा हो जाएगा, और इसके बाद मूव करते हुए मान लीजिए हम इसको ऐसे लेके आते हैं और यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं,
तो यहां से वापस आएगा तो ये मिनिमा हो जाएगा. सो दैट इज मिनिमा 1, मिनिमा 2 एंड मिनिमा 3. सो 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हमें मिले. ठीक है, सेम यही चीज यहां बोल रहा है, दैट इज अ कॉस्ट फंक्शन. हमारे पास 1 2 3 मिनिमम सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं. अब इसमें से हमें मिनिमम फाइंड करना है. सो दैट इज ग्लोबल मिनिमा. सो इसमें से ये वाला सॉल्यूशन हमारा ग्लोबल मिनिमा है. सो इन द रिस्पेक्ट ऑफ 2 से हमारे पास 1 में सॉल्यूशंस मिल जाएगा. So gradient descendant, find out the optimum solution using in form of minima, or it may be a local minima and universal solution or generalized solution. It is called as global minima. तो जैसे इस केस में एक convex function है, that is b weight and that is j value, and this is our solution. So this is our minimum cost function. यहां तक किसी को दिक्कत, क्योंकि थ्योरेटिकली ही है आज की क्लास में, जिस लाइन पे दिक्कत हो वो पूछते जाओ. एंड दिस इज इक्वेशन मींस कि हमारे पास ये a इज अ करंट वैल्यू, ये हम इससे नेक्स्ट में कब मूव कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, वहां पर जाना है. दैट इज अ ग्रेडियंट फंक्शन, कितना ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज लर्निंग रेट. सो यहां पर थे. सो दिस इज अ करंट वैल्यू A पर है, that is I think written here. B is the next, I think नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं. A is the current value and यहां पर पहुंचना है हमें नेक्स्ट हमारा that is B. एंड यहां से यहां तक आने में हमने क्या किया, इस वाले कर्व को यूज किया है. तो दैट इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन. इस इक्वेशन, इस कर्व का एक लाइन होगा, जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन ऑफ इक्वेशन थी. इसी तरीके से इस कर्व को भी एक लाइन जनरेट करेगा, एक इक्वेशन जनरेट होगी. ठीक है, और उसमें हम लोगों ने जो स्टेप यूज किए हुए हैं, कैसे किए हुए हैं, वो हम इससे डिसाइड करेंगे. दिस इज, एंड इसकी जो इक्वेशन है उसको डेरिवेट कर रहे हैं इसके थ्रू. तो यहां से यहां तक आने में क्या रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड 2 पैरामीटर. तो ये तो हमें कैलकुलेट करना है. कैसे आएंगे, लर्निंग रेट दे दिया है और इस वाले का इक्वेशन दे दी है. तो ये हमने इसको डेरिवेट कर लिया. सो इट इज अ मैथमेटिकल नोटेशन. वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाना है, हमें करंट वैल्यू चाहिए, हमें उस करंट वैल्यू से दूसरे पोजीशन तक की इक्वेशन चाहिए जिसको हम डेरिवेट करेंगे, और किस फॉर्म में आ रहा है, कितने स्टेप्स ले रहे हैं वो चाहिए. दैट इज अ लर्निंग रेट. मतलब सीढ़ियों पे अगर हम चढ़ रहे हैं कि 2-2 सीढ़ियां चढ़नी है, 3 सीढ़ियां चढ़नी है, मतलब 3 स्टेप्स यूज करने हैं या 1 स्टेप यूज करना है, ये हमारा डिसीजन है. ओके, तो मान लीजिए इस तरीके के स्टेप होते हैं. अब हम यहां से रन करना चाहे, हम यहां पे आए, हम जंप कर रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो या तो हम इस पोजीशन पे जंप कर लें 2 स्टेप, फिर 2 स्टेप जंप करें, फिर 2 स्टेप जंप करें, फिर यह आया 1 और फिर हम 1 स्टेप जंप करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके का जो पोजीशन होगा, जंप होगा, स्टेपिंग साइज होगी, वो हमारा लर्निंग रेट यूज करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं स्टेपेस डिसेंडेंट. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो. नहीं है, चलिए. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट स्लाइड. अ लर्निंग रेट. ठीक है, लर्निंग रेट लास्ट क्लास में बताया, इससे पहले ही बताया था कैसे हम लर्निंग रेट को यूज करते हैं. इसकी वैल्यू हमने कंसीडर किया है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में आए, इस डायरेक्शन में आए, 0 हो सकता है. ठीक, तो अब इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि लर्निंग रेट का कैसे यूज होगा. Here it is 2 pictures, left and right. This is big learning rate and small learning rate. So how learning rate are used? Yeah, why we are using learning rate? So that is important. Steps in a gradient descendant takes into the direction of local minima. Means कि हमारे पास इस केस में हम यहाँ पर हैं, यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये जो डायरेक्शन होगा वो हमारा लर्निंग रेट डिसाइड करेगा.
प्लस कितने कितने स्टेप्स में जाना है ये लर्निंग रेट डिसाइड करेगा. That is a local minimum and determine that learning rate. So that is big and small. So important thing, which one is neither this line, neither too low and nor too high. बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. तो लर्निंग रेट के एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर हम इसकी बात करें, हमने अपना एक लर्निंग रेट लिया है उस पिक्चर से अलावा एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं तो शायद कंप्यूटर सिस्टम आपके इसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है और मैथमेटिकली हम इसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. मान लीजिए हमने इस स्टेप साइज में दो दो के हम यहां से थे और हम इसके लोकल मिनिमा को फाइंड करना है. तो हमने कहा है कि हम तीन तीन के स्टेप्स पे जंप करते हैं. तो 1 2 3 पहली पोजीशन से हमने जंप किया 1 2 3 पोजीशन, अगेन 1 2 3 पोजीशन पे जंप किया एंड 1 2 3 पोजीशन पे जंप किया. अब क्या चीज है कि कंप्यूटर सिस्टम इसको लोकल मिनिमा कंसीडर कर रहा है. ठीक है, अब इसके बाद एक स्टेप ये है, इसके बाद एक स्टेप इस तरीके से मूव करता जा रहा है. बट ह्यूमन नेचर क्या करता है कि हम इस लास्ट स्टेप पे हैं, हमें यहां तक जाना है तो हम एक स्टेप जंप कर लेंगे. बट कंप्यूटर सिस्टम ये बोल रहा है कि हमने आपको बोला है कि स्टेप होना चाहिए 3, तो उसको 3 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है. यहाँ तो एक ही स्टेप आ रहा है तो उसने एक स्टेप इसको यूज कर लिया और एक स्टेप इसको यूज कर लिया. तो ये जंप होके यहां पर आ गया. तो हमें चाहिए था इस लोकल मिनिमा पे, बट इस लोकल मिनिमा पे नहीं आया. अब वो दूसरे स्टेप पे जंप कर गया. अब ये वापस आएगा इस पर, लेकिन कैसे आएगा कि ऐसे ड्रिल किया, इस पोजीशन पे आया, फिर वापस इसी पोजीशन पे आएगा, छोटे स्टेप्स, फिर वापस आएगा छोटे स्टेप्स, फिर छोटे स्टेप्स. तो ये इस तरीके से जंप होते होते ये कन्वर्ज होगा एट लास्ट इस लोकल मिनिमा पे. जैसे बॉल की बात करें, एक बॉल को आप पीसेस को, सर्किल को किसी जार में उसमें प्लेस करो तो आप छोड़ेंगे तो जब उसका मोमेंटम हाई होगा वो उतनी तेजी से उस लास्ट पोजीशन पे जाने के बाद नेक्स्ट तक जंप हो जाएगा और फिर वो वापस आएगा. फिर एक स्टेप्स, थोड़े थोड़े स्टेप्स के बाद वो रिड्यूस होके यहाँ पर आ जाएगा. तो सेम यहाँ पर है कि अगर हमने लर्निंग रेट ऐसे रखा बड़े तो हो सकता है कि एक बार में ये इतना कन्वर्ज ना हो, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा. हो सकता है अगली बार में लर्निंग रेट ऐसा आए, फिर हो सकता है ऐसा आए, फिर वापस ऐसा आए. तो कह सकते हैं इसमें नंबर ऑफ इटरेशन और नंबर ऑफ एपोक बहुत हाई होंगे और आपका जो ट्रेनिंग टाइम है वो भी हाई हो जाएगा. तो बिग लर्निंग रेट में एक ये डिसएडवांटेजेस होते हैं. अब स्मॉल लर्निंग रेट की बात करें, इसी में अगर हमने इसमें इसी कॉन्सेप्ट को अगर ये बोलते कि हमें लर्निंग रेट लेना है 1 स्टेप साइज, तो हम यहां से 1 स्टेप साइज जंप करते, देन 1 फिर 1. इस तरीके से हम हो सकता है कि डिजायर्ड लोकल मिनिमम पे हम थोड़ा सा ट्रेनिंग कह सकते हैं एपोक बढ़ जाएगा, बट हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, करेक्ट आउटपुट मिलेगा. इसको 2 बोलेंगे. तो मान लीजिए 2 के स्टेप में अगर ये रन करता तो भी हो सकता था ये करेक्ट मिल जाए, बट 3 में पॉसिबल नहीं है, 4 में पॉसिबल हो सकता है, बट हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं. तो बेटर है लर्निंग रेट हमेशा आपके स्मॉल होने चाहिए. इसीलिए वहां बोला था इट इज 0 to 1. अब 0 रखेंगे नहीं, 0 लर्निंग रेट रख देंगे. अगर इसको हम वहां से हटा देते हैं, 0 हम लर्निंग रेट अगर रख देते हैं तो वो कहीं मूव ही नहीं करेगा, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कोई मोमेंटम नहीं होगा. तो 0 कंसीडर नहीं करते हैं. तो हम क्या कंसीडर करते हैं, अप्रोक्सीमेट 0.2, 0.3, 0.25,
001 बहुत छोटा हो गया, इसमें नंबर ऑफ इटरेशन या एपोक टाइम बहुत ज्यादा आएगा, 0.01 ले सकते हैं। बट कोशिश ये करेंगे कि इस 0.3 से हम हायर पे ना जाएं जब तक हमें इसका कोई फार्मूला नहीं मिलता अकॉर्डिंग टू डेटा। सर यस सर बट सब चीजों के अकॉर्डिंग अलग अलग ये आएगा लर्निंग रेट जो यस अकॉर्डिंग टू डेटा, जैसे अकॉर्डिंग टू डेटा आएगा। सर तो ट्रेन तो हमें मॉडल करना पड़ेगा पहले ही, तो यस ऑप्टिमल ट्रेनिंग रेट तो हमें पहले निकालना पड़ेगा ना, उसको ट्रेन करने अभी के हमें मतलब उसी पे, डेटा। हाँ अभी हम उसी पे आ रहे हैं। तो डेटा से पहले बहुत सारी चीजें जो हम लोग मॉडल मॉडल बोलते हैं, मॉडल क्रिएट करने से पहले बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो एक जनरलाइज वन टाइम में सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इन 3 लर्निंग रेट पे ही फोकस किया जाए और फिर हम इसको ड्रॉ करते हैं और नंबर ऑफ एपोक, नंबर ऑफ लर्निंग रेट में, और फिर हम अपने एग्जैक्ट या कह सकते हैं रिलेटिव लर्निंग रेट को फाइंड आउट करते हैं। सो अभी लर्निंग रेट का कॉन्सेप्ट ये है कि मोमेंटम के लिए होता है, किस डायरेक्शन में जाना होता है, और बहुत ज्यादा हमें लर्निंग रेट नहीं लेना है और बहुत छोटा लर्निंग रेट भी नहीं लेना है। तो जो तुम्हारा प्रॉब्लम था सॉल्यूशन उसका ये है कि हमें लर्निंग रेट डिसाइडेड होता नहीं है, तो हम सबसे पहले प्लॉटिंग करेंगे, ड्रॉ करेंगे अपने लर्निंग रेट को, दैट इज हायर लर्निंग रेट, लोअर लर्निंग रेट जितने भी हैं, एंड उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एपॉक को, या इटरेशंस कह सकते हैं, ट्रेनिंग इटरेशंस कह सकते हैं। सो ग्रेडियंट डिसेंडेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लर्निंग रेट। अब ये अगर हमें पता चल गया तो हमारा कॉस्ट या कह सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएंगी। सो वी हैव टू प्लॉट द कॉस्ट फंक्शन एज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। So put the number of iterations that is in x direction and cost function in y direction। तो ये आपका एक लर्निंग रेट या इसके अकॉर्डिंग आपका लर्निंग रेट ड्रॉ हो जाएगा। That is cost function and it is number of iteration। So we have using 0th iteration 1 2 3। सो लर्निंग रेट आपका जितना स्टार्टिंग होगा उसमें से उसमें लर्निंग रेट कंसीडर करेंगे, और जो ऑप्टिमम सोल्यूशन देगा, मान लीजिए लर्निंग रेट हमारे पास इससे हमें डिसाइड करना है और ये हो गया हमारे पास कॉस्ट फंक्शन। अब ये कह रहे हैं कि कॉस्ट फंक्शन पे वैल्यू हाई थी और हमारा टास्क क्या है कि इस कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस करना, मिनिमम करना है। तो कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, तो हमारे पास कई सारी प्लॉटिंग आएंगी डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग रेट पे। मान लीजिए हमने इसको लर्निंग रेट लिया था 0.3, इसको लिया है 0.2, इसको लिया है 0.1 और दिस वन इज 0.6। ठीक है, अलग अलग लर्निंग रेट है हमारे पास। अब डिफरेंट लर्निंग रेट पे, डिफरेंट कॉस्ट फंक्शन पे हमारे पास इनमें से जो बेटर रिजल्ट देगा वो हमें फाइंड करना है। और बेटर रिजल्ट कैसे होगा? जब हमारे पास कॉस्ट फंक्शन मिनिमम होगा। तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, तो वी हैव नॉट चूज दैट लर्निंग रेट। फिर हम इस पे आते हैं टूवर्ड्स द लोअर, और इसकी बात करें तो ये भी लोअर होता जा रहा है। और इस केस में हमारे पास लर्निंग रेट अगर हम 0.1 लेते हैं एज्यूम दैट, तो हमारे पास ये जो कॉस्ट फंक्शन है वो प्रॉपर होगा और वो रिड्यूस होता जाएगा। इसके नीचे हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है जो हमने एज्यूम किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए फार्मूला भी होता है, बट फार्मूले से बेटर है कि हम अपने जो प्रॉब्लम्स होगी, डेटा होगा, उसके अकॉर्डिंग लर्निंग रेट को और इसको प्लॉट कर लेंगे, और हम जो ट्राई करेंगे लर्निंग रेट हम एज्यूम करेंगे 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3। सर लॉस को लेके नहीं चलेंगे क्या ऑप्टिमल लर्निंग रेट निकालने के लिए? लॉस ही तो है ये लर्निंग रेट के अकॉर्डिंग ये लॉस ही तो निकालते चले जा रहे हैं। ये आपका कितनी इटरेशंस होंगे
और ये आपका कॉस्ट फंक्शन होगा। जैसे एक सिंगल के लिए निकाला है ये, मान लीजिए, और मान लीजिए हमने 0.6 के लिए ऐसे कॉस्ट निकालता है, लॉस निकालते हैं, और ये हम इसके लिए कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन जो भी है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जितना ऑप्टिमल कॉस्ट और लॉस फंक्शन होगा, रिड्यूसिंग लॉस फंक्शन होगा, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी डिस्प्ले करा लेंगे। सर ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर जाएगी दो बातें? क्या? एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि जो लर्निंग रेट होना चाहिए बहुत स्लो नहीं होना चाहिए, एक तरफ हाँ। हम लोग कह रहे हैं कि एरर जो होनी चाहिए सबसे कम होनी चाहिए, पर हाँ। सबसे कम एरर तो सबसे कम लर्निंग रेट में ही आएगी, सबसे कम ऐसा लर्निंग रेट में ही आएगी। ऐसा कोई गारंटीड नहीं है, ऐसी क्योंकि कोई सर अगर हम लोग गारंटी। लैडर पे, अच्छा सर, हाँ, बताओ बेटा, सुन रहे हैं। सर अगर लैडर पे एक एक स्टेप लेके उतरेंगे तो हम्म। लॉस फंक्शन हमारा जीरो मतलब मिनिमम होगा, हम्म। और अगर हम लोग मतलब उससे ज्यादा स्टेप्स बढ़ाएंगे तो लॉस फंक्शन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। पर हम लोगों से ये कहा गया है कि हम लोग मिनिमम, बहुत ज्यादा मिनिमम नहीं ले सकते, ना ही ज्यादा मैक्सिमम ले सकते हैं लर्निंग यस, रेट। उसके लिए देखो एक तो सर ये फार्मूला बात, होता है, उसके लिए फार्मूला होता है, जो हमारे पास इनपुट गिवन होते हैं उससे हम लोग एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का इनपुट है, ये थोड़ा सा टीडीएस और लंबा टास्क होता है। मान लीजिए हमारे पास x1 और x2 दो इमेजेस हैं, और इसमें 0 1 1 इस तरीके से डेटा गिवन है। तो जो हमारा लर्निंग रेट निकालने का तरीका होता है, इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि ऑटो एसोसिएटिव और हेट्रो एसोसिएटिव। मतलब कि हमारे पास इन दोनों को यूज करके ये जो मैट्रिक्स बनी है, इसका यूज करके या इस डेटा का यूज करके हम x1 इनवर्स x, या इसको x1 ही रखते हैं और ये कंप्लीट x है, इससे एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को, और इसका यूज करके हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे, और उस आइगन वैल्यूज को यूज करके हम एक फार्मूला क्रिएट करते हैं, उससे हम लर्निंग रेट निकालते हैं, जो अप्रोक्सीमेट या कह सकते हैं इट इज लेस देन 1/लैम्डा मैक्स। ये वैरी करता है, ठीक है। तो ये लर्निंग रेट हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। ये कंट्राडिक्टरी है, बट हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी इस सोल्यूशन में या इस तरह के केस में, कि हमारे पास मान लीजिए डेटा सेट में होते हैं 1 lakhs रो एंड 1000 कॉलम्स। अब इतना बड़ा डेटा सेट का आप यूज करोगे और उसका इनवर्स निकाल के उसका मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनाओगे, तो डेटा सेट आपका जो ये था उससे बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? उस केस में मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करना आइगन वैल्यूज को थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है। छोटे डेटा सेट के लिए बेटर है, बट बहुत लार्ज डेटा सेट में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम उस केस में इसको जस्ट एजम्पशंस का यूज करके कर सकते हैं। कुछ स्टैटिक फार्मूले होते हैं, कुछ स्टैटिक आपका मेथड्स होते हैं, जिनको यूज करके हम लर्निंग रेट को निकाल सकते हैं। बट इनिशियली हम लोग लर्निंग रेट जो होगा हम इसके ऊपर नहीं जाते हैं। ये भी 0.3 भी हमारे लिए बहुत बड़ा लर्निंग रेट होता है। तो ट्राई आउट करते हैं कि 0.1 से हम 0.2 के बीच में ही रहें, जिससे हमारे पास इस छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स जनरेट होंगे, नंबर ऑफ ट्रेनिंग टाइम बढ़ेगा, बट इसकी एक्यूरेसी या कन्वर्जन की गारंटीड होती है। तो इसका हम एक अभी आपको छोटा सा न्यूरल नेटवर्क का कोड जनरेट करके आपको दिखाएंगे डिफरेंट लर्निंग रेट के अकॉर्डिंग। अभी बस आप इतना समझो कि अगर हमें लर्निंग रेट को प्लॉट करना है कॉस्ट के हिसाब से, तो डिफरेंट जो हमने अप्लाई किए हैं हम सबको प्लॉट कर लेंगे, जो उसमें से बेटर होगा हम उसको करेंगे। अब इस केस के में बात करते हैं 1 लाख रो में, हम 1 लाख रोज पे तो अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें से एक सैंपल्स जनरेट करेंगे, और वो सैंपल्स पॉसिबल हो सकता है कि
एक सैंपल साइज ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कहा 20 रोज के लिए हम सैंपल्स जनरेट कर लेंगे, तो 20 रोज का जो सैंपल होगा वो प्लॉट करेंगे यहाँ पे, और उससे लर्निंग रेट निकालेंगे, और उसके बाद लर्निंग रेट हम इस इंटायर डेटा सेट पे फिट करेंगे और मॉडल्स को क्रिएट करेंगे। तो हम कंप्लीट मॉडल पे लर्निंग रेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा टास्क है और ये आपका बहुत ज्यादा टाइम किल कर देगा। तो या तो लर्निंग रेट को एज्यूम कर लीजिए, जितना बड़ा डेटा सेट होगा ऑन एवरेज, या कह सकते हैं बहुत बड़ा भी है तो 0.1 से 0.2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, नंबर ऑफ एपोक बढ़ेंगे बस, केवल और कुछ नहीं। हाँ 0.3 0.4 से ऊपर लिया तो मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल जाए। ओके, इसको थ्योरेटिकली अभी आप इतना समझो, नेक्स्ट क्लास में इसको प्रोग्राम के थ्रू भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके सर यस, सर रियल में लर्निंग रेट फाइंड आउट करना पॉसिबल है, मतलब ऑप्टिमल लर्निंग रेट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। sir, what is the relation between learning rate and cost function? बोला तो बेटा, कॉस्ट फंक्शंस एंड लर्निंग रेट का यही रिलेशन है कि हमारे पास एक ये वैल्यू है और एक ये कर्व है हमारे पास इस तरीके का, थोड़ा सा ये आपने एक फंक्शन क्रिएट किया, आपने यहां से इसको स्टार्ट करना चालू किया, दैट इज अ कॉस्ट फंक्शन। अब ये कॉस्ट फंक्शन क्या आ रहा है, मिनिमम होना चाहिए, यहां पर एक मिनिमा मिलेगा, एक मिनिमा यहां मिलेगा, एक मिनिमा यहां मिलेगा, एक मिनिमा इसको यहां मिलेगा। अब इसको लोकल मिनिमा तक आना है तो कैसे आएगा? अब दो तरीके हैं, अगर लर्निंग रेट छोटे होंगे तो हो सकता है पहले मिनिमम पे निकल आए, और लर्निंग रेट आपका बड़ा हुआ तो जंप हो सकता है आपका ऐसा हो जाए। तो ये यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, डायरेक्टली हमारे पास इस आंसर पे आ गया। जब इस तरह का लर्निंग रेट हाई होता है तो पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास ओवरफिटिंग की। न्यू कॉन्सेप्ट होता है, इसको मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इट इज अ मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट। ये ओवरफिटिंग का कॉन्सेप्ट या ओवरफिटिंग को फाइंड आउट कर लेता है, ठीक है। और एक होता है अंडर फिटिंग, कहीं पे भी क्या आपके पास कह सकते हो सारे डेटा पॉइंट्स में नहीं मिलते हैं, दैट इज अंडर फिटिंग। और एक होता है बेस्ट फिटिंग। तो बेस्ट फिटिंग के लिए ही हम सारा वर्क करते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि ये जो आपके पास स्टेप साइज है ये छोटे छोटे रखें, और ये स्टेप साइज आपको लर्निंग रेट ही डिसाइड करने देता है। तो कॉस्ट फंक्शन और लर्निंग रेट में बस यही एक आपका सिमिलरिटीज या कह सकते हैं कनेक्शंस है कि कॉस्ट फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है तो लर्निंग रेट भी हमारा पॉसिबल है, या कह सकते हो स्टेप साइज वो हमारा मे बी ऑन एवरेज 0.3 to 0.1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। हमने कहीं नहीं बोला कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, इट इज इन बिटवीन 0.1 to 0.3, सो नॉट नाइदर हाई नॉट लो, सो it is lowest, it is not highest। तो ये आपके पास एक रिजिड पोजीशन हो गई। अब इसके बीच में हो सकता है 1000 पॉइंट्स हों, मतलब 0.1 से लेकर 0.3 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। हो सकता है 1000 में से आपके सभी पॉइंट्स पे आंसर सही आ रहा हो, या हो सकता है केवल 10 पॉइंट पे आंसर सही आ रहा हो, या आपके केवल 2 पॉइंट पे आंसर सही आ रहा हो। वो केवल और केवल आप जब तक उसको कैलकुलेट करेंगे नहीं, कॉस्ट फंक्शन रिड्यूस करेंगे नहीं, आप नहीं बता सकते। तो लर्निंग रेट हम एज्यूम करके रखते हैं, नो मैथमेटिकल फार्मूला। एक स्मॉल डेटा सेट के लिए तो हम कर सकते हैं, बहुत लार्ज डेटा सेट के लिए नहीं कर सकते हैं। हम जस्ट एज्यूम करते हैं कि लर्निंग रेट हमारा होगा मे बी कम, ठीक है, 0.3 to 0.5। तो इसको एक प्रोग्राम के थ्रू नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे लर्निंग रेट या बैच लर्निंग रेट रन कर रहा है।
जिसको भी कोई डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। आई थिंक अभी क्लास पूछना हो तो पूछ लो। इसके अलावा एक टॉपिक ये बचा है बट इसको बहुत थ्योरेटिकली है, दैट इज अ बैच ग्रेडियंट एंड स्टोकास्टिक ग्रेडियंट। बैच ग्रेडियंट क्या है कि हमारे पास एक ये डेटा सेट है मान लीजिए, और ग्रेडियंट डिसेंडेंट एल्गोरिदम रन करनी है। तो करता क्या है ग्रेडियंट डिसेंडेंट, ये कंप्लीट डेटा सेट को एक बैच बनाता है और कंप्लीट R1 R2 R3 R4 जो भी लास्ट तक जाएगा उसको रन करेगा, और रन करने के बाद जो हमारे पास वेट्स एंड बायस होंगे उसको अपडेट करेगा। It takes overall data set. So that is called as vanilla gradient descendant. So it calculates the error for each sample within the training data set. So हर एक sample जो है R1, R2, R3 training data set में, but after on all training example we have been evaluate and model get update. मतलब R1 से R3 तक हमारे पास R4 तक सारे सैंपल्स पे हम कैलकुलेट करेंगे और फिर बाद में हम मॉडल्स अपडेट करेंगे, मतलब वेट एंड बायस को अपडेट करेंगे। दैट इज ग्रेडियंट बैच ग्रेडियंट डिसेंडेंट एल्गोरिथम। सो इट इज थोड़ा एफिशिएंट होता है और लो कॉस्ट होती है, इसकी स्टेबल एरर होती है, बार बार हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट, इट टेक हाई मेमोरी बिकॉज ऑफ, मान लीजिए आपके पास 1 लाख सैंपल्स होते हैं तो 1 लाख सैंपल्स को मेमोरी में पहले स्टोर करेगा फिर अपडेट करेगा, नेक्स्ट के लिए फिर स्टोर करेगा, कैलकुलेट करेगा, फिर अपडेट करेगा। तो ये आपके बहुत ज्यादा मेमोरी को यूज करता है। सेकेंडरी है स्टोकास्टिक ग्रेडियंट, इसके जस्ट अपोजिट। ये क्या करता है कि एक सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे इसने कैलकुलेट किया और इसको वेट एंड बायस को अपडेट किया, फिर दूसरे, अब जो अपडेटेड वाला वेट है इसको इसने पिक किया और फिर इसको अपडेट किया, फिर थर्ड वाला पिक किया और इसको अपडेट किया। तो हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के बाद ये अपने मॉडल्स को अपडेट करता है। तो ये एडवांटेज है कि ये फ्रीक्वेंटली डेटा के अकॉर्डिंग मॉडल अपडेट करता है। मान लीजिए 1 टाइम है तो ये 1 लाख टाइम आपसे ट्रेनिंग सैंपल्स है तो ये एक इटरेशन मतलब 1 लाख पूरा डेटा स्कैन करने पे 1 लाख टाइम ये मॉडल्स को अपडेट करेगा। सो इसका एरर की पॉसिबिलिटी कम होगी और इसका जो कंप्यूटेशन होगा वो एफिशिएंट होगा, बट हर ट्रेनिंग में ये अपडेट करेगा तो इसके अकॉर्डिंग ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होगा। Okay, so I think it is a meaning update a parameter of each training sample one by one depending on the problem. So most of the time हम लोग इसी gradient algorithm को यूज करते हैं। अब ट्रेडिशनली एक नई एल्गोरिदम यूज हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं मिनी बैच। मिनी बैच मतलब कि हमारे पास 50 के हमने बैच बना दिए, 150 के ट्रेनिंग सैंपल्स थे, 50 के बैच बना दिए। इस 50 को एंटायर एक्सेस करेंगे तो वेट एंड बायस को हम अपडेट करेंगे, फिर नेक्स्ट 50 को करेंगे तो वेट एंड बायस यूज करेंगे, देन नेक्स्ट 50 यूज करेंगे, वेट एंड बायस यूज करें, अपडेट करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज मिनी बैच प्रॉब्लम। तो अगर हम गौर से देखें तो बैच एंड स्टोकास्टिक को ही यूज किया है, बस बैच छोटे बना दिए, हर बैच के बाद अपने वेट एंड बायस को अपडेट कर रहे हैं। तो करंट सिनेरियो में ये वाला यूज किया जा रहा है, बट थ्योरेटिकली इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इट इज अगेन अ स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंडेंट एल्गोरिथम। सो बैच ग्रेडियंट एंड स्टोकास्टिक ग्रेडियंट 2 टाइप के ग्रेडियंट डिसेंडेंट होते हैं। एक क्या करता है, कंप्लीट ट्रेनिंग सैंपल्स, कंप्लीट ट्रेनिंग डेटा सेट को ट्रेन करता है, देन मॉडल अपडेट करेगा। एक में क्या करेगा, कंप्लीट डेटा सेट के हर एक सैंपल्स को ट्रेन करेगा, देन हर सैंपल्स के बाद मॉडल को अपडेट करेगा। सो दिस इज computationally expensive and this is less expensive, and vanilla gradient का यूज किया गया है। एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो CNN में, दैट इज
वनीला स्ट्रक्चर, वो इसी बैच ग्रेडियंट को यूज करते हैं। मीन्स ये कंप्लीट रन और फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो किसी को कोई डाउट हो तो पढ़िएगा, ठीक है, पूछो नहीं डाउट, आप लोगों के पास समय नहीं होगा पूछने का तो नेक्स्ट टाइम पूछिएगा, पढ़कर पूछिएगा, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ऐसे अरेंज नहीं करेंगे। ओके Okay, thank you, sir.